Good morning, 7th class. And today we are here to study that science, where we are going to study lesson number 2. Lesson number 1 we have done earlier. The explanation is done. The answers are sent to you. You have to note them in fair notebook, and I hope that you have completed them up to now. Whatever your queries, whatever your difficulties, you can share with me on my personal number. I will definitely guide you. Okay. So today we are going to study lesson number 2, that is nutrition in animals. What was our first chapter? It was nutrition in plants. Now lesson number 2 is nutrition in animals. Okay students, in our previous lesson we have understood that what is nutrition. Nutrition means क्या है? The process of taking food in and utilizing it for the body is nutrition. Okay? तो nutrition all living organisms के लिए important है. Now let's see what is there in lesson number 2. Have you opened your science book, that is living science? We are on page number 15. Okay, just look at the first para. All animals including humans need certain nutrients to stay alive and grow. These nutrients are obtained from food. The food you eat is not a form that can instantly provide you with nutrients. So here in this para we are getting to know about the nutrients. So the question arises, what are nutrients? Okay, it is clear in this para that we get the nutrients from food. But what are the nutrients, the components of food that we get from the food? They are first carbohydrate. Second fat, third vitamins, fourth minerals, fifth carbohydrate, vitamins, fats, minerals, proteins. Okay students, so ये वो सारे केमिकल्स है जो हमको हमारे फूड से मिलते हैं, फूड के डाइजेशन के बाद. ओके, carbohydrate gives us energy to work and play. Fat stores energy. Vitamins help us to fight against diseases. Minerals also help for developing strong bones and teeth, and they also help against the diseases. They also keep our body safe from the diseases. And protein helps in building of the body, in formation of new cells. Okay, so these are the components of food. Then what is there in first para? Animals, humans, सभी को alive रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए क्या लगता है? फूड लगता है. The food you eat is not a form that instantly provide you the nutrients. हम जो खाना खाते हैं उसी से हमको इंस्टेंट मतलब शीघ्रता से एनर्जी नहीं मिलती है, बल्कि फर्स्टली व्हाट हैपेंस, इट is broken down into small particles. These particles must then be changed into simple soluble forms. मतलब हम जो खाना खाते हैं, हमने रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ककड़ी, जो भी खाया है, सैलेड खाया है, पापड़ खाया है, वो डायरेक्ट बॉडी में जाकर हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, बल्कि उसका सिंपल सोल्यूबल फॉर्म, मतलब वो डाइजेशन में सिंपल साधारण घुलनशील तत्वों में कन्वर्ट होता है डाइजेशन की प्रोसेस में. ठीक है, तब वो हमको हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. तो इस मतलब जो फूड है उसमें न्यूट्रिशन में कौन से प्रोसेसेस है, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. नाउ सी in the same para where the heading is given ingestion. Okay,
What is meant by ingestion? First is ingestion. Ingestion is the taking food in, and it also involves the taking of food through the mouth and eating it. इंजेक्शन करना मतलब फूड को अंदर लेना, मुंह से अंदर लेना और उसको खाना, ये है इंजेक्शन। फूड को अंदर लेना, मुंह से उसको खाना, ये है इंजेक्शन। डाइजेशन, डाइजेशन इज द breakdown of food into a simple soluble form with the help of digestive juices in the body। और डाइजेशन का प्रोसेस मतलब पचन की जो क्रिया है वो है फूड का सिंपल सोल्यूबल फॉर्म बन जाना, हमारे शरीर में जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस है उनके द्वारा हमारे खाने का पूर्णतया पचन हो जाना, दैट इज डाइजेशन। Then absorption. Absorption is the process by which the food in the soluble form passes into the body fluids such as blood। Absorption यानी अवशोषण, मतलब उसको शोषित करना। Absorption मतलब जो डाइजेस्टेड खाना है, उस जो सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करना और वो बॉडी के पार्ट्स में ब्लड में मिलना, ये होता है ब्लड में पास होना, ये होता है एब्जॉर्प्शन। मतलब पहले खाना अंदर लिया गया, इंजेक्शन, देन इट इज डाइजेस्टेड, देन एब्जॉर्प्शन, द नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। What is meant by assimilation? Assimilation is the process by which absorbed nutrients are utilized by the body। Assimilation में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमको मिले हैं, जो खाना हमारे शरीर ने अवशोषित कर लिया है, मतलब पहले आपने खाना लिया, इंजेक्शन, देन खाने का डाइजेशन हुआ, खाना सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, देन खाने को बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, ब्लड में वो मिक्स हो गया, देन एसिमिलेशन मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने यूटिलाइज कर ली, देन इजेशन, इजेशन लास्ट प्रोसेस है जहां पर जो एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन मतलब इजेशन, एलिमिनेशन मतलब बाहर निकालना। अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स जो है हमारे खाने में, कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जैसे रफेज है, फाइबर है, जो डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, ऐसे अनडाइजेस्टेड पार्ट हमारी बॉडी एक्सपेल आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ओके, इजेशन मीन्स बाहर निकालना। सो ये सारे जो प्रोसेसेस है, वेरियस प्रोसेसेस, ये किसमें इन्वॉल्व है? ये पूरे प्रोसेसेस न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व है। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर न्यूट्रिशन इन animals। Now we will see how nutrition takes place in amoeba। न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो अमीबा के बारे में आपको क्या पता है स्टूडेंट्स? अमीबा आपको पता है कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी, ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव, ओके, जिनकी बॉडी मात्र एक सेल की बनी होती है। सेल यानी कोशिका, मतलब जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है ना। जैसे घर बनने के लिए या दीवार बनने के लिए एक
ईट का जो महत्व होता है, वैसे हमारी बॉडी की संरचना में सेल का महत्व है। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। ओके, तो एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक मल्टी सेल्यूलर और एक यूनिसेल्यूलर। तो हम जो ह्यूमंस है मल्टी सेल्यूलर है, और यूनिसेल्यूलर एनिमल्स उसमें से हम अभी अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन आप समझ चुके हैं इसके पहले। So unicellular amoeba engulfs tiny particles of food by throwing its phosphate known as pseudopodia around it. The pseudopodia join together to form a small cavity known as a food vacuole. The food inside the vacuole is digested by digestive juice. तो अमीबा का पिक्चर आप देखिएगा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, इट डज नॉट हैव अ फिक्स शेप। ओके, ये इसमें आपको दिख रहा है कि कैसे अमीबा अपने सुडोपोडिया को यूज करता है। ये उसका फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल मतलब खाली जगह जहां पर वो अपने शिकार को लेता है, फिर उसे अंदर ग्रहण करता है। ठीक है, सो जो सुडोपोडिया है वो क्या है, फॉल्स फीट है, मतलब वो होता नहीं, वो थोड़ी देर के लिए निर्माण करता है। अमीबा अपने बॉडी में सुडोपोडिया को थोड़ी देर के लिए निर्माण करता है, क्योंकि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, सुडोपोडिया एक ऐसी कैविटी, एक ऐसी खाली जगह निर्माण करता है, फूड वैक्यूल जिसको बोलते हैं, और उसमें प्रे यानी शिकार जो भी है उसका जो भक्षण करता है जिसका वो अंदर जाता है, और उस पर फिर वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस निकालता है, उस पर डालता है, और इस तरह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है अमीबा का, और फिर वो उसको एसिमिलेट करता है, जिससे अमीबा को एनर्जी मिलती है ताकि वो अपने दूसरे फंक्शंस यानी कार्य पूरे कर सके। नाउ यू टर्न ओवर द पेज एंड स्टे ऑन पेज नंबर 16. Then second animal we are going to study about is hydra. हम देखेंगे कि हाइड्रा में कैसा, हाइड्रा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टीसेल्यूलर एनिमल, लेकिन हाइड्रा जो है वो मल्टीसेल्यूलर एनिमल है। इसमें नंबर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स यानी क्या होता है, कैन यू सी दिस डायग्राम, सी हियर there these tentacles are given above. Okay, so if we draw that diagram, it will take long time, so I will leave you firstly to try this diagram at home. You will try this diagram at home, then we will study further. So firstly write the homework. Your today's homework of lesson number 2 is draw a amoeba uses its pseudopodia. Pseudopodia, pseudopodia. Then B, you have to use hydra uses its tentacles and C, you have to use you have to draw frog uses its long sticky tongue. These all diagrams, these diagrams are given on page number 16. Okay, so you have to draw this A, B, C that are given
given on page number. So they write clearly here for your understanding. Page number what? 16 of science book. Okay, students. So we will see ahead this lesson in next period. Up to then, bye.